Hello, everyone. Here we are again with another live session for our viewers. Thank you for joining us today. This is Kehkashan Niazi hosting today's session. I would like to welcome you all on behalf of Sante Private Limited to our live session. We are having a series of live sessions where we invite some renowned and leading consultants from all over Pakistan to discuss about different topics related to skin and cosmetology. In the previous session, we discussed about one of the most concerned topic when it comes to skin, which was acne vulgaris. And since then, we have been receiving a number of queries and questions regarding acne scars and the treatments associated with it. So, due to the popular demand, today we will discuss about acne scars and fine lines. Acne and the scars it leaves behind can be really distressing, right? And it can also impact your self esteem and confidence. Some people don't experience acne scars at all, but most people deal with at least a few scars at some point in their lives. तो आज हम बात करेंगे स्कारिंग के हवाले से और उसके साथ जो फाइन लाइंस जो कि इवेंचुअली रिंकल्स बन जाती हैं एज वी एज. आज इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं हु इज अ वेरी वेल नोन नेम इन डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी सेगमेंट. With great pleasure, I would like to introduce our guest for today, an accomplished and experienced dermatologist having years of experience, also a member of Pakistan Association of Dermatologists, a consultant dermatologist, an aesthetic physician based in Karachi, Dr. Anita Kazi. Thank you, Dr. Anita, for lending us some time from your busy schedule. We are honored to have you here with us. Thank you so much, Kehkashan. I'm thankful to Sante Private Limited for inviting me and for enabling this online platform for the patients. Thank you. Great. You're welcome. Here, I would like to give some information regarding Dr. Anita's clinic. Her clinic address is room 514, 5th floor, Doctors Plaza, Block C, Clifton. The address, timings, and appointment details are in the ticker below. You can post your questions below in the comment section, जो कि हम प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर अनीता से पूछेंगे. Moving on with the program, Dr. Anita, to start off, Ji, मैं आपसे पूछना yes. चाहूंगी कि why do people get acne scars? Are these Uh, scars permanent or hmm. do they fade over time? See, Kehkashan, whenever there's severe type of acne, severe form of acne, whenever there's acne, तो कुछ basic चीजें होती हैं, जैसे bacterial proliferation, वहाँ dead cells, debris का होना, excessive oil production, जो कि follicle जहाँ से acne हो रही है, उसको destroy कर देता है. So then acne scars are caused. Whenever there is severe form of acne, जिसमें बहुत बड़े-बड़े nodules बन जाएं, cyst बन जाएं या nodulocystic acne हो या जल्दी-जल्दी acne के breakouts होते हो कुछ लोगों में और वो इतने बड़े और deep हो उसका damage कि वो deeper skin तक यानी dermis या subcutaneous tissue तक चला जाए तो उसमें acne scarring हो जाती है. Although whenever there's acne, there's inflammation, तो जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो वहाँ कोलेजन बाकी ब्लड सेल्स सारी चीजें रिपेयर के लिए रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती हैं लेकिन वंस देयर इज अ डीप डैमेज तो उसको ऐसे नहीं रिपेयर किया जा सकता सो कोलेजन इज नॉट अनेबल इनफ के उन सारे स्कार्स को ठीक कर सके यानी जो गड्ढे हो जाते हैं उनको ठीक नहीं कर पाती सो व्हेनेवर देयर इज सिवियर एक्ने नोड्यूलर एक्ने सिस्टिक एक्ने नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने एंड पेशेंट्स हु हैव रिकरेंट ब्रेकआउट्स जिनको जल्दी जल्दी एक्ने हो रही होती है उनमें एक्ने स्कार्स हो जाते हैं एक्ने स्कार्स जैसा आपने पूछा कि परमानेंट है या फेड हो जाते हैं whenever there's acne there's post inflammatory hyperpigmentation यानी ब्राउन कलर के निशान काले निशान जिसको रेड या काले या ब्राउन धब्बे भी कहा जाता है वो निशान या इरिदीमा यानी रेडनेस वो अगर हो जाता है जो कि नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्ने हीलिंग है तो वो 3 to 6 months में ठीक हो जाता है मे बी विद सम विटामिन सी serums and sunblock and even if you don't apply anything तभी वो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा बट द स्कार्स जो खड्डे हो जाते हैं आइदर एट्रोफिक स्कार्स और हाइपरट्रोफिक स्कार्स वो परमानेंट होते हैं इफ नॉट ट्रीटेड जी
Okay, so what acne scar treatment options are हम्म, available और आप अपने पेशेंट्स को हाँ ज़्यादातर इन ट्रीटमेंट के हवाले से क्या एडवाइस करती हैं? देखिए कभी भी कहकशां whenever we are treating acne scars we have to find out what type of scar is it. ओके। सो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है स्कार्स की वो दो में होती है कि आइदर इट इज अ डिप्रेस्ड स्कार जिसको हम एट्रोफिक स्कार कहते हैं और इट इज अ हाइपरट्रोफिक स्कार यानी उभरा हुआ स्कार. ठीक है एंड द अदर क्लासिफिकेशन पॉइंट इज कि आइदर द स्कार एरिया में डिस्कलरेशन कैसी है, आइदर इट इज हाइपरपिगमेंटेड हाइपोपिगमेंटेड और इरिथीमा जो रेडनेस है वो है. सो वंस वी अच्छा अब जब हम एट्रोफिक स्कार्स या डिप्रेस स्कार्स में आ जाते हैं तो अगेन एट्रोफिक एंड डिप्रेस स्कार्स यानी खड्डे जो हैं that is divided into three types. Number one is rolling scar. उसमें ये होता है कि there's a broad depression in which and there's a broad depression of scar and it has sloping edges. एंड रोलिंग स्कार जो है उसमें वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जैसे एक्सप्रेशन चेंज होता है तो स्कार का शेप चेंज हो जाता है. जैसे एज करते हैं कोलेजन इलास्टिन कम हो जाता है तो वो रोलिंग स्कार्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं and they respond very well to aesthetic procedures rolling scars. नंबर 2 जो आ जाता है एट्रोफिक स्कार्स में डिप्रेस स्कार्स में उसको हम कहते हैं बॉक्स स्कार्स. उसमें ऐसा होता है कि there's a broad depression with very well defined edges जैसे किसी स्क्वायर या बॉक्स की तरह. द एजेस आर लाइक अ बॉक्स और स्क्वायर एंड दे आर अ लिटिल रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, दे आर अ लिटिल डिफिकल्ट स्कार्स टू ट्रीट. जो थर्ड नंबर स्कार आ जाता है एट्रोफिक स्कार में दैट इज आइसपिक स्कार. दे आर डीपर एंड नैरो स्कार्स and they look like a more look like an enlarged open pore and उसमें ये हो जाता है कि फिर they are also difficult to treat. तो जो ये एट्रोफिक स्कार्स हो जाते हैं. The other type of scar is hypertrophic scar whenever there is nodular acne or cystic acne. तो जैसे कि सबको पता है कि ये सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है तो जब यहाँ रिपेयर हो रही होती है तो उसमें कोलेजन काफी ज्यादा आ रहा होता है. सो नॉर्मल जो लीजन है उससे बड़ा स्कार हो जाता है. इट बिकम्स थिक रबरी काइंड ऑफ अ स्कार विच इज अ कीलॉइड और देयर कैन बी अ हाइपरट्रोफिक स्कार. ये जो हाइपरट्रोफिक स्कार्स होते हैं ये यूजुअली इंटीरियर चेस्ट वॉल पे और बैक पे और जॉ लाइन पे ज्यादा नजर आ रहे होते हैं. सो एंड देन ये दो टाइप्स हो जाती हैं स्कार्स की. वंस वी डायग्नोज व्हाट टाइप ऑफ स्कार इट इज, एज ऑफ द पेशेंट, बाकी सारी चीजें, उसके बाद ये मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिससे एक्नी स्कार्स बहुत अच्छे हो जाते हैं. अराउंड 50 to 70% स्किन में इंप्रूवमेंट आ जाती है. देखिए हम जैसा पहले फ्लॉलेस स्किन होगी वैसी स्कार्स के बाद नहीं हो सकती इवन आफ्टर सो मेनी स्कार रिविजन्स. तो बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाना 100% हो जाना इज नॉट पॉसिबल बट देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स जिससे 50 to 70%, कुछ लोगों का 80-85% भी हो जाता है, अच्छा हो जाता है. सारे प्रोसीजर्स में टाइम थोड़ा लगता है एज देयर इज नो मैजिक वॉन्ड इन डर्मेटोलॉजी तो टाइम थोड़ा लगता है. Now I'll come to the procedures. कौन-कौन से procedures available हैं? Chemical peels are available, जिससे ये होता है कि icepick scars में काफी दफा किया जाता है, उससे उनके improve होने के chances बहुत अच्छे होते हैं. There's another procedure which is known as subcision, which is very commonly done nowadays. वो तब होता है कि जब अच्छा we have to examine the scar, सब देखना पड़ता है. When the scar is adherent or atrophic, यानी नीचे से ऐसे पकड़ा हुआ होता है through a fibrotic tissue, then what we do is we go under the skin and we subcise the scar. उसको हम तोड़ते हैं नीचे से. So ऊपर की skin relax होती है, उससे collagen ज़्यादा produce होता है तो बेहतर होता है. So there are chemical peels, there are subcisions, there are procedures in which we induce collagen, जिसको हम collagen induction therapies कहते हैं. That is done through microneedling. Microneedling can be done through a derma pen or a derma roller, and it can be done alone or mixed with PRP, which is platelet-rich plasma. उसमें हम patient का ही blood लेते हैं, उससे centrifuge करते हैं, and then we inject and then apply also while doing the procedure. The other procedures that we can do is CO2 fractional laser, that is laser resurfacing. उससे भी scars बहुत अच्छे हो जाते हैं. Fillers can be done for scars and micro nano fat graft किया जा सकता है scars के लिए. वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे स्कार फिलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, फेस का कंटूर उससे बेहतर हो जाता है. एंड द अदर प्रोसीजर्स
हाँ, when we can do punch excision also, we can do excision also, उसमें क्या होता है कि स्कार को निकाल देते हैं और स्टिच कर देते हैं स्किन को. The other procedure is again punch replacement graft. उसमें punch is a tool जिसके थ्रू हम स्कार एरिया निकाल देते हैं और कान के पीछे या कोई और स्किन का निकाल के उसको ग्राफ्ट कर देते हैं. So it is punch replacement graft. So there are procedures like chemical peels, collagen induction therapies, that is microneedling, derma roller, alone or with PRP. There are fillers, there are micro nano fat grafts, there's CO2 fractional laser, and ये सारे procedures हैं जो बड़े आराम से किए जाते हैं. Subcision, ये सारे procedures हैं जो किए जाते हैं with very good results. तो मैम जिस तरह से आपने बात करी प्रोसीजर्स की, तो आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीस प्रोसीजर्स? There are side effects associated with the procedures. Suppose if we are talking about chemical peel, what happens in chemical peel? Whenever we are applying the chemical peel, our motive is to get inflammation. जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, कोलेजन आएगा. जब वो सारी चीजें आएंगी तभी स्कार फिल होगा. So when we are doing chemical peels, initially there's redness, erythema, burning sensation, and sometimes there's post-inflammatory hyperpigmentation, जो कुछ patients में थोड़ा लंबा चलती है, कुछ में जल्दी ठीक हो जाती है. Then once we are doing subcision, उसमें ये होता है कि जी जब हम स्किन में वो कर रहे होते हैं, because it's a little अंदर जाके करने वाला थोड़ा सा invasive procedure है, तो हम local anesthesia देते हैं, तो उसकी थोड़ी swelling रहती है, and there can be some bruising also for subcision. While we are doing CO2 fractional laser, उसमें we resurface the skin through laser, उसमें layer by layer skin का burn होता जाता है. So again उसमें scab formation होती है जो 3 to 7 days में जाती है. And if we talk about PRP, उसमें भी bruising हो जाती है, redness होती है, burning sensation होती है, 1-2 दिन तक थोड़ी सी burning होती है, patient को discomfort होता है, scaling होती है, dryness होती है. So all these procedures have side effects, but they are limited to the skin only. कुछ सिस्टमिक इसमें नहीं होता और सारी ऐसी चीजें हैं जिनका डाउन टाइम जो है ना वो 3 to 7 days होता है. If we are doing fillers या nanograft तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ रहा होता. ओके, सो सारे शॉर्ट टर्म सारे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल जी. Okay, so what are the few do's and don'ts that you advise to get rid of scarring? जी, कहकशां देखिए, वंस देयर इज एक्ने तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्कारिंग को रोक सके एक्सेप्ट कि प्रॉम्प्ट एंड टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्ने. जब भी एक्ने हो किसी को, प्लीज सी द डर्मेटोलॉजिस्ट इन पर्सन सो दैट यू आर गिवन गुड ट्रीटमेंट ऑन टाइम. दैट विल मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एक्ने स्कार्स, और अगर एक्ने स्कारिंग होगी तब भी बहुत कम होगी. एंड जिन लोगों को रेगुलर एक्ने होती रहती है, प्लीज डोंट स्क्वीज, prick or pop your acne. Don't just pick the scabs जो crust बन जाते हैं, उनको नहीं निकालें. और अगर acne के breakouts बहुत जल्दी आते हैं कि जी एक अभी acne का clear हुआ नहीं breakout और दूसरा आ जाता है, तो please see a dermatologist in person. उससे ये होगा कि आपको proper दवा दी जाएगी and आपकी acne के बाद जो post acne scarring है वो minimize हो सके. अच्छा तो मैम अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि जी. फाइन लाइंस और रिंकल्स के हवाले से है. तो जी. यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चेहरे पर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं तो उसकी हम्म. वजह क्या होती है? अच्छा, जो मेन वजह है दैट इज एजिंग. जैसे हम एज करते हैं तो हमारी स्किन में जो कोलेजन है वो कम होता जाता है और हमारी स्किन इतना कोलेजन नहीं प्रोड्यूस करती कि वो उतना रेप्लेनिश करे जो स्टोर्स खाली हो चुके हैं. सो विथ एज वी टेंड टू लूज कोलेजन एंड इलास्टिन, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है. हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो स्किन ज्यादा फ्रेजाइल भी हो जाती है और ड्राई हो जाती है, तो उससे भी रिंकली अपीयरेंस आ जाती है. हमारा जो डीप फैट है फेस का वो भी एज के साथ कम होता जाता है, रिजॉर्ब होता जाता है. तो एजिंग से हमें रिंकलिंग और फाइन लाइंस आती हैं. दूसरे जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं दैट इज सन एक्सपोजर. जितना ज्यादा सन एक्सपोजर होगा बगैर सन ब्लॉक के उतनी फाइन लाइंस रिंकल्स ज्यादा होंगी. स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज, ये हो सकता है. अच्छा, और कुछ लोगों में आदत होती है जी वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन हर वक्त रखते हैं या कोई और एक्सप्रेशन हर वक्त रखते हैं. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने मसल को उसी एक्शन में रखेंगे तो वो आपको रिंकलिंग या फाइन लाइंस उस जगह पे आ जाएंगी. Okay, so that's something new. जी. हाँ.
what are the treatment options for fine Hmm. lines and wrinkles? For fine lines and wrinkles, पहले तो बेसिक इज टू यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो कि हमें अर्ली एज से ही शुरू करना चाहिए। जैसे हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आती हैं, उनको बोलो कि जी सनब्लॉक इन एवरी सिचुएशन, तो वो कहती है डॉक्टर साहब मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। बट इट्स नॉट अबाउट घर से बाहर जाना, घर के अंदर भी लगाना होता है। सो सनब्लॉक एट एन अर्लियर एज, ताकि आपका जो सन डैमेज है वो कम से कम हो सके। उसके अलावा देयर आर मेनी सेरम्स अवेलेबल हैं एंड क्रीम्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग है, जो फाइन लाइंस पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो। बट वंस यू हैव फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, तो फाइन लाइंस के लिए केमिकल पील्स बहुत अच्छा काम करती हैं। माइक्रो नीडलिंग जो कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है, जिस जो डर्मा पेन से या डर्मा रोलर से हो सकती है, दैट हेल्प्स अ लॉट। इफ इट इज एडेड विद पीआरपी, तो उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। उसमें जो एनलार्ज पोर्स हैं, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं विद एजिंग, वो भी अच्छे हो जाते हैं। एंड CO2 फ्रैक्शनल लेजर जो है, वो बड़ा अच्छा काम करता है फाइन लाइंस के लिए। सो दीज प्रोसीजर्स वर्क रियली वेल फॉर फाइन लाइंस। एंड वंस देयर इज रिंकलिंग, तो फिर तो बोटॉक्स इज द ओनली ऑप्शन। हम्म। अच्छा जी। मैम, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट यूजिंग Hmm. एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? Honestly, sunblock at an earlier age and anti-aging products between 20 to 30 years. ओके 20, yeah, late 20s and early 30s, yeah, between 20 to 30 years is the best time to start anti-aging regimes. ओके। सो मैम, अगर हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की बात करें Hmm. तो ऐसे बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं अवेलेबल Hmm. इन द मार्केट। हाँ. तो इफ वी टॉक अबाउट सीरम्स इन पर्टिकुलर, व्हाट Hmm. इंग्रेडिएंट्स वन शुड लुक फॉर व्हाइल चूजिंग एन एंटी Yes. एजिंग सीरम? जी, एक तो कहकशां ये होता है कि वी हैव टू सी कि जी रिंकलिंग कितनी है, कितनी डीप लाइन्स हैं, कौन से एरिया में है, आपके मसल एक्सप्रेशन की वजह से है या एज के साथ हैं। लेकिन जो मेन इंग्रीडिएंट्स, मैं कुछ इंग्रीडिएंट्स के नाम ले लेती हूँ, तो लोगों के लिए वो लेना ईज़ी हो जाएगा। समथिंग व्हिच हैज़ सेरेमाइड्स, कोलेजन, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड उसके अलावा विटामिन सी आ जाता है, लैक्टिक एसिड एंड रेटिनॉल। रेटिनॉल इज़ ऑन द टॉप। रेटिनॉल जो है वो इट इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट, जिसको ट्रेटिनोइन भी कहते हैं लोग कॉमनली। उसको यूज़ कर सकते हैं तो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ओपन पोर्स, आपकी एज जो है वो रिटार्ड करती हैं। ये रेटिनॉल जो है वो रिंकलिंग और फाइन लाइन्स को रिटार्ड करता है। लेकिन रेटिनॉल के साथ ये होता है कि उसको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ इट कॉजेज़ ड्राइनेस, रेडनेस, थोड़ी-सी बर्निंग सेंसेशन। सो उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए, जो आप अप्लाई करें, और उसका टाइम ड्यूरेशन एवरी डे के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। सम गुड hyaluronic acid based moisturizer should be used along with retinol and a sunblock obviously. Nothing without a sunblock will work. Okay. जी, So thank you. Thank you so much, Dr. Anita, for giving us a detailed understanding regarding scarring and fine lines. I hope कि you're हमारे welcome. डिस्कशन से और आपकी गाइडलाइंस हमारी ऑडियंस को इस मसले के हवाले से काफी I hope, बिल्कुल, I'm sure, इंशाल्लाह। और बहुत सारे सवाल के जवाब मिले। Okay, so viewers, बिल्कुल, now it's your turn to ask us some questions. So let's move on to the live question and answer session. We will ओके। try to take as many of your questions as possible. So let's move to our first question. Neha Arif Khan, suggest a good treatment for wrinkles, please. रिंकल्स, नेहा के रिंकल्स कौन से एरिया में है? इफ नेहा कैन टेल अस कि कौन से एरिया के रिंकल्स की बात कर रही हैं? फोरहेड पे फाइन लाइंस रिंकल्स हैं, या आई के लैटरल बॉर्डर्स पे, जिसको हम लोग क्रोस फीट कहते हैं, वहां है, या पूरे फेस में छोटी छोटी पतली पतली फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं? अगर हमें बता देती हैं एरिया, और नेहा अपनी एज बता देती हैं, तो इट विल बी इजियर। नेहा, इफ यू आर एट एन अर्लियर एज, तो फिर जैसा मैंने बताया कि आप केमिकल पील्स ले सकती हैं, एंड आप पीआरपी ले सकती हैं विथ माइक्रो नीडलिंग। ये कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है, जो डर्मा रोलर के साथ माइक्रो नीडलिंग हो सकती है, वो हो सकता है, या CO2 फ्रैक्शनल लेजर हो सकता है। उसके साथ कुछ एजेंट्स हम कंबाइन करते हैं, देते हैं, जैसे रेटिनॉल है, ग्लाइकोलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड सेरम्स हैं, ऐसी चीजें विद सन ब्लॉक्स। लेकिन अगर ज्यादा रिंकल्स हैं तो प्लीज सी सम डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन, जो असेस कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, और उसका अकॉर्डिंगली आपको इलाज बता सके। Okay, great. So moving to our next question, Abira Yes. asks, what are the treatment options available to heal acne scars besides Hmm. procedural treatments?
Honestly, there's nothing, Abira, जो procedures के अलावा आपको heal कर सके. See, there's nothing that can heal acne scars to 100% or can prevent it. So once there are acne scars, you need procedures. उसके बगैर नहीं होगा. No creams, no gels, no serums can help you. Yes, जो post-inflammatory hyperpigmentation होती है, जो मैंने बताया शुरू में कि red धब्बे या brown धब्बे जो निशानात हो जाते हैं, वो आपके अच्छे हो सकते हैं with vitamin C serum, sunblock. लेकिन जो गड्ढे हो गए हैं ना, जो खड्डे सारे, वो नहीं ठीक हो सकते विदाउट प्रोसीजर्स. Okay. Sharmeen Majid, invasive जी. procedure, how long help us to treat the wrinkles and is it recommended? See, there's no such invasive procedure for wrinkles. Wrinkles के लिए जो हम इंजेक्ट करते हैं बोटॉक्स, वो बड़े आराम से हो सकता है एंड इट हेल्प्स अ लॉट. बोटॉक्स जो है वो आपके रिंकल्स को बिल्कुल आयरन आउट कर देता है, अच्छा कर देता है, स्किन को शाइनी कर देता है और वो आपका आराम से 6 मंथ्स तक चलता है. एंड सम पीपल जो रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं, उनका फिर जो टाइम है वो बढ़ता जाता है. यानी पहले सिटिंग पे 6 मंथ्स, फिर 7-8 मंथ्स, तो वो टाइम भी बढ़ता रहता है. प्लस आपको पोस्ट केयर भी करनी होती है, लाइक सन ब्लॉक्स एंड एंटी एजिंग सेरम्स वगैरह. Okay. Next question, जी. Sayeda Fatma Nakvi. Please हम्म. talk about scarring from mild acne, not really हम्म. scars, but marks on the skin left after Hmm. pimples. Yes. See, सैयदा फातिमा, whenever there's mild acne, scars नहीं होते उस पे, बिल्कुल जैसा आपको है. लेकिन आपको पिगमेंटेशन जो आप कह रहे हो कि मार्क्स हो जाते हैं, इनको निशानात कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या एक्नी मार्क्स. इसके लिए जेल्स मिलते हैं. एक जेल आता है जिसका नाम, आई डोंट नो इफ वी कैन टेक द नेम्स. एक आप कोई विटामिन सी सेरम यूज कर सकती हैं, फातिमा, फातिमा, विटामिन सी सेरम एट नाइट एंड सम गुड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. तो उससे आपके जो मार्क्स हैं, दे विल टेक अराउंड 3 to 6 मंथ्स, लेकिन बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, स्किन फ्लॉलेस हो जाती है. ओके मैम, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आपने जी. बात करी सीरम्स की कि दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि हम्म. सीरम्स जो है ये रात के टाइम पर यूज करना चाहिए. हम्म. तो इज दिस ट्रू? सी, सेरम के अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना. नाउ सेरम्स हैव हाइलुरोनिक एसिड, अगर आप यूज कर रही हैं तो इट इज वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड एन एंटी एजिंग सेरम एंड इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम आल्सो. आप सुबह में अपने सनब्लॉक के नीचे लगा सकती हैं, आप दोपहर में लगा सकती हैं, नाइट टाइम लगा सकती हैं. सेरम्स आर लाइक मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजिंग सेरम्स ऑलवेज यूज्ड पहले, उसके बाद सनब्लॉक या बाकी चीजें. अच्छा, विटामिन सी सेरम्स है, उसके लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जी. कुछ लोग कहते हैं और कुछ बुक्स के मॉर्निंग में नहीं, डे टाइम में इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन विथ इट, तो उनको सिर्फ रात में यूज़ करना चाहिए. So if you're using any glutathione serum या vitamin C serum in daytime, तो आप उसको सनब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं, बाकी रात में यूज कर सकते हैं. मॉइस्चराइजिंग सेरम सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त यूज हो सकता है. यस, इफ यू आर यूजिंग रेटिनॉल सेरम्स तो उसको ड्यूरिंग डे टाइम नहीं यूज करना, उसकी एप्लीकेशन नाइट टाइम होनी चाहिए. ओके. जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जी. आयशा खान. हम्म. Is it necessary to go for procedural treatment like dermabrasion or chemical peel for acne scars? Yes, Dr. Saiba, it has to be पहले तो assessed कि what type of scars that you have, and scars के लिए जो सारे मैंने procedures बताए, फिर वो आपके according to scar decide किया जाता है, because ज़रूरी नहीं है कि हर patient में एक ही specific type का scar हो. There can be 2 to 3 types of scars occurring in the same patient in the same area at a time. जी. So और सारे scars जो है वो different treatment modalities को respond कर रहे होते हैं. So yes, you will be needing chemical peels or other procedures according to the type of scars that you have. No topical treatments. I'm repeating, no topical treatment, no gels, no cream. Nothing can help you get rid of these scars. ओके. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिया इकबाल मेमन का. Hmm. कैन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स ट्रीट एक्ने स्कार्स? Sadia, skin lightening products can treat the marks, post-inflammatory hyperpigmentation and the marks, जो निशान धब्बे रह जाते हैं, उनको जरूर ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन स्कार्स जो हम गड्ढे कहते हैं या हाइपरट्रोफिक स्कार यानी डिप्रेस स्कार या रेस स्कार, उसको नहीं ट्रीट कर सकते. नो. ओके. जी.
Sunita Victor, hi ma'am. Will you please tell me the best procedure for acne? पहले बताया कि वी हैव टू सी एंड एग्जामिन द पेशेंट, सी द टाइप ऑफ स्कार के जी आपका एट्रोफिक में रोलिंग स्कार है, बॉक्स स्कार है या आइसपिक स्कार है, या आपके स्किन पे कुछ 2-3 स्कार्स मिले हुए हैं, या कोई एक स्पेसिफिक टाइप का स्कार है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से प्रोसीजर की सिटिंग्स कितनी लगेंगी, एंड दैट ऑल डिपेंड्स आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। बिल्कुल। Okay, Fatma Sabir, is skin polish good for skin? फातिमा ऑनेस्टली वो जो स्किन पॉलिश पार्लर्स से हो रही होती है ना, इट इज नॉट गुड फॉर स्किन बिकॉज दे यूज अ लॉट ऑफ ब्लीच इन इट। अच्छा, और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं जी ये स्किन पॉलिश है, बट दे एक्चुअली यूज ब्लीच। वो ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर ज्यादा डाल देते हैं ताकि बर्निंग ना हो, लेकिन काफी लोगों को उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ड्राइनेस, स्केलिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, swellings हो जाती हैं. So honestly, skin polish is not good for skin because it is a bleaching agent. All right. Okay, so next question is Rashid Rafiq ka, which laser is effective for acne scars? Yes, Rashid, there are two kinds of lasers which are good, which have shown good efficacy for acne scars, for the improvement of acne scars. उसमें एक लेजर होता है CO2 fractional laser जिसमें लेजर resurfacing होती है, और दूसरा एक लेजर है आइकॉन जो कि अवेलेबल नहीं है हमारे पास कोई ज्यादा लोगों के पास. So that laser also gives very good results without any side effects. Okay, great. Next question है आमना जुनैद का. I have garhe or scars of acne. How to get rid of it, please? यस आमना, आपको गड्ढे ही हैं, एक्नी स्कार्स. अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वील हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ स्कार्स यू हैव एंड देन वी हैव टू गिव यू ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. जब आई अगेन रिपीट द नेम्स ऑफ द ट्रीटमेंट, इट कैन बी केमिकल peel, it can be subcision, there can be collagen induction therapy that includes micro needling through a derma pen or a derma roller. There can be excision of the scar, there can be punch replacement graft, there can be fat fillers, there can be PRP with collagen induction therapy, or there can be micro nano fat graft. ये सारे CO2 फ्रैक्शनल लेजर, आइकॉन लेजर, जो चीजें मैंने पहले बताई वो सारे प्रोसीजर्स हैं. एंड यू नो हमेशा ये नहीं होता कि सारे पेशेंट में या एक ही पेशेंट में कोई एक प्रोसीजर काम कर जाए. वी यूजुअली कंबाइन द प्रोसीजर्स. जैसे पहले जब एट्रोफिक स्कार्स आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्कार दैट वी गेट टू सी इन द क्लिनिक्स, so that needs a few sessions of subcision first. Uske baad we do some micro needling to induce the collagen and we add some PRP to it. Uske baad agar CO2 की जरूरत होती है या आइकॉन की जरूरत होती है तो वो हम देखते हैं कि जी पेशेंट ने कौन सी चीज पे किससे ज्यादा अच्छा इंप्रूव किया है, कोलेजन किससे अच्छा प्रोड्यूस हुआ है, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं. So there's always, we combine 2 to 3 procedures and we do 2 to 3 procedures at a time also. एक ही सिटिंग पे हम 2 से 3 procedures मिला के भी काम कर रहे होते हैं, तो उससे पेशेंट को जल्दी भी रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. So it's not just one procedure that can help you, we combine multiple procedures also to give you desired results. All right. So next question, Neha Arif Khan, is there any way to treat acne besides isotretinoin? नेहा, इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ एक्नी दैट यू हैव. अगर आपको सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है, कोमेडोनल एक्नी है जिसका मतलब है कि व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, नोड्यूल्स हैं, सिस्ट हैं, या आपकी एक्नी का ब्रेकआउट है जो बार बार होता है, बार बार विदाउट एनी ब्रेक, तो फिर तो ओरल आइसोट्रेटिनोइन इज द बेस्ट ऑप्शन. उससे ये होता है कि आपकी एक्नी स्किन अच्छी हो जाती है, एक्नी फ्री हो जाती है, थोड़ा लंबा अरसा आप एक्नी फ्री स्किन के साथ गुजार लेते हैं और स्कारिंग भी मिनिमाइज हो जाती है. Okay. So whenever you oral isotretinoin से काफी लोग डरते हैं because side effects का डर लगा रहता है. लेकिन what I normally do in my clinic is I make the patient for sit in front of me कोई 15 से 20 मिनट, मैं सारे side effects बताती हूँ, एक एक चीज explain करती हूँ, और पेशेंट बड़ा खुश होके जाता है और दवा खा के भी इस्तेमाल करके विद पॉजिटिव रिजल्ट्स वापस आ रहा होता है. सो कोई डरने वाली बात नहीं है ओरल आइसोट्रेटिनोइन में. Okay.
Okay, so next question, Samar Javed, how Hmm. long do acne scars last? Summer, acne scars last for rest of your life. If you don't get them treated, if you don't get the gaddhas, khaddas, indentations, depressed scars treated, they will remain with you for rest of your life. And as you age, जैसे आप age करेंगे, आपका collagen elastin कम होगा, तो आपके scars और prominent हो जाएंगे. Mm-hmm. All right. Hmm. Next question, Rashid Khan, old acne scars can be treated or not? जी बिल्कुल, ओल्ड एक्ने स्कार्स कैन आल्सो बी ट्रीटेड. बिल्कुल, बड़े आराम से ट्रीट हो जाते हैं. दे टेक अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज़ वो काफ़ी अरसे के पुराने होते हैं, तो हमें स्किन को किक करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि वो अपना कोलेजन प्रोड्यूस करे, बट दे कैन बी ट्रीटेड. येस. Okay. Okay, so moving on to our next हुँ. question, Anas Hanif, skin brightening येस. cream बता दें please. I have uneven skin tone and dark complexion. Plus अच्छा. suggest a brightening face wash. I have oily skin. ऑयली स्किन. अच्छा, आपकी अनस ऑयली के साथ एक्नी प्रोन स्किन तो नहीं है? बिकॉज़ इफ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन तो फिर मैं कोई भी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट आपको नहीं सजेस्ट कर सकती. बिकॉज़ इन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जिससे एक्नी एग्रीवेट हो जाती है, स्किन का ऑयल एग्रीवेट हो जाता है. सो इफ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन देन नो. लेकिन ब्राइटनिंग क्रीम्स कुछ हैं जो कि एक बड़ी अच्छी सी क्रीम आती है विद द नेम ऑफ इवन टोन सी क्रीम. आप Mm-hmm. उसको रात में इस्तेमाल करें, सुबह में कोई अच्छा सा सनब्लॉक लगाएं. एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश भी, इवन टोन का भी फेस वॉश आता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट विल हेल्प. बट आई एम अगेन वार्निंग यू, अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो प्लीज ये चीजें ना इस्तेमाल करें. Okay. So ma'am, यहाँ मेरा एक हम्म, question होगा कि जी. is there any diet that can help to reduce scars? नो, ऑनेस्टली देयर इज नो डाइट. नहीं, Uh-huh. एक्चुअली क्या होता है कहकशां, व्हेनेवर देयर इज अ स्कार, जैसे मैंने पहले बताया, द डिफेक्ट इज डीपर. हमारा डर्मिस और डीप डर्मिस डिफेक्ट हो जाता है, तो फिर उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है Mm-hmm. विद एनी डाइट और एनी टॉपिकल एजेंट. ओके. अच्छा मैम, इस तरह से हमने अभी इंग्रेडिएंट्स की बात करी, जब हम लोग एंटी एजिंग सीरम्स की बात कर रहे थे, तो उसमें जी. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम्म, हाइलुरोनिक एसिड की जो आपने बात करी, हम्म, तो उसके जी. बेनिफिट्स के हवाले से आप थोड़ा सा बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? इट इज hyaluronic एसिड इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट. ये हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में. अगर किसी की स्किन ड्राई है एंड ब्लॉची है, पैची है, इरिटेशन है, रेडनेस है, स्केलिंग है, तो उसको मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करता है. दूसरा, hyaluronic एसिड की बड़ी अच्छी बात है कि इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटी एजिंग. तो अगर कोई रेगुलरली यूज करता है तो फाइन लाइन रिंकल्स पे भी काम करता है. एंड ये इट इज वाटर बेस्ड आता है, तो इसमें हम एक्नी प्रोन स्किन में भी दे सकते हैं, जिनमें एक्नी, बिकॉज ड्राई स्किन तो एक्नी प्रोन स्किन भी ड्राई हो सकती है ना. जी. उसमें भी एरियाज ड्राई कर रहे होते हैं, तो वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है. तो उसमें हम हर दफा क्रीम्स नहीं दे पाते, जो कोमेडोजेनिक क्रीम्स हैं, यानी जिनसे व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं, स्किन कंजेस्टेड होती है, वो हम हर वक्त नहीं दे पाते. तो ये वाटर बेस्ड हाइड्रोनिक एसिड सेरम्स देते हैं. तो दे आर वेरी गुड फॉर एक्नी प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, एंड टू मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ स्किन, एंड इट वर्क्स एज एन एंटी एजिंग आल्सो. सो हाइड्रोनिक एसिड हैज गुड ओके, बेनिफिट्स. ग्रेट. तो मैम, मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह आई एम श्योर कि हमारी काफ़ी यंग जो ऑडियंस है, लड़के लड़कियां ये हमारा सेशन देख रहे होंगे, तो क्या मैसेज आप देना जी. चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्ने स्कार्स? Huh. In order to avoid acne scars, whenever there's acne, please see a qualified dermatologist फौरन से. वो जो टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं ना कि जी हमने टूथपेस्ट लगा ली, हमने ये लगा लिया, हमने वो लगा लिया, हमने अपने किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज कर लिए, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, हमने फेसबुक पे देखा किसी ने व्हाइटनिंग क्रीम लिखी थी, हमने वो लगा ली, हमने मिक्सचर लगा लिया. So please don't abuse your skin. Always see a qualified dermatologist in person and on time. जरूर टाइम पे देखें, अपनी स्किन को इन चीजों के हवाले ना कर दें. तो आप जितना जल्दी डॉक्टर को देखेंगे, आपकी एक्नी ट्रीट होगी, तो यू विल बी हैविंग मिनिमम एक्नी और स्कार्स. And once you have acne scars, please get the acne scars also treated, because acne scars से लोगों की self esteem, self confidence बहुत low हो जाता है. And when we have options available, we have so many options available. And you know, scars उससे बहुत improve हो जाते हैं कहकशां. There are so many happy patients that we have, alhamdulillah.
तो यह है कि जी प्लीज व्हेन यू हैव एक्नी स्कार्स आल्सो तो उसको भी ट्रीट कराएं एंड अपनी स्किन को मैल हैंडल बिल्कुल ना करें, व्हाइटनिंग के पीछे ना पड़े एंड ग्लो तो ठीक है, आपकी स्किन में अगर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बाल नहीं है फेस पे, तो जो कंप्लेक्शन आपका है ट्राई टू कीप हैप्पी इन दैट. Okay, great. So we'll be taking some more questions from our Yes. audience. Sayyid Fatma Naqvi पूछती है, what kind of Hmm. serums or products can I use to make my skin fresh and glow? Hmm. Like what ingredients should it have? Yes, Fatma, there should be glutathione and vitamin C in it. ठीक है? You can use serums which have glutathione and vitamin C. They are easily available. काफी नामों से आ रहे होते हैं. उसको आप नाइट टाइम में लगाएं और सुबह में सन ब्लॉक लगाएं. And even if you want glow, तो पानी की कंजम्पशन ज्यादा करें. अपना जो फ्राइड आइटम्स हम लोग इतने ले रहे होते हैं आजकल, तो रमजान में देयर एवरीथिंग इज बीइंग फ्राइड. रमजान से पहले लॉकडाउन था तो उसमें सारी एक्स्ट्रा कुकिंग हो रही थी और रमजान में सारी फ्राइड चीजें हो रही है, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट. वो चीजें जो फ्राइड हैं, जो रिफाइंड शुगर है जिनमें, यानी वाइट चीनी और उससे बनी सारी चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स सारी जो हम कचरा खा रहे होते हैं, उस सबको अवॉइड करें, पानी ज्यादा पिएं एंड ट्राई टू टेक इनफ स्लीप ऑल्सो. Okay, nice. Shima Sadia, is PRP with microneedling helpful to overcome the acne scars and pigmentation? यस, ज़रूर, बहुत ज़्यादा है. सॉरी शीमा, माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी इज़ वेरी इफेक्टिव and there are so many patients who have got benefited from this procedure. बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक्ने स्कार्स पे बहुत अच्छा हो जाता है. लेकिन पिगमेंटेशन में भी वो काम करता है एंड बट अगेन पिगमेंटेशन के लिए आपको लाइटनिंग क्रीम साथ में, सन ब्लॉक्स और पिगमेंटेशन का रीजन देखना पड़ता है कि जी क्या है. कुछ लोगों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स तो वो जरूर यूज करनी होंगी साथ में, लेकिन इट वर्क्स वंडरफुली फॉर स्किन पीआरपी विद माइक्रोनीडलिंग. Okay. Next question. Sayyid यस Sharik Ali, I have a question जी. that in males and females, the treatment options are same. Yes, usually they are same treatment options. Males में ये होता है कि the skin tends to be more thicker. जो मेरा experience है इसका acne और acne scars का, तो males में जो acne है वो भी aggressive आती है और उसके जो scars हैं वो भी काफी extensive और deep होते हैं as compared to females. तो females पे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, males पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है. Although the treatment options are the same. ठीक है. जी. Okay, so I think that's जी. it then. Madam, before we conclude, I would like to ask you that is there any message that you would like to give to our audience in order to, maintain their lifestyle and to make the skin even more better? Basic, very basic tips. In a good intake of water, at least 10 to 12 glasses of water every day. रमजान खत्म हो तो उसके बाद इसमें इतना टाइम नहीं होता, Of course. ठीक है. एंड ट्राई टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. ऐसी डाइट जिसमें आप फ्रूट्स भी लें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी लें, आप सैलेड्स भी लें. आप जंक को कम से कम करें. जंक को कम से कम करें, फ्राइड को कम से कम करें, बेकरी प्रोडक्ट्स को कम से कम करें. एवरीथिंग विच इज हाई इन ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसको कम करें. उसमें सारा फ्राइड स्टफ आ जाता है, जंक आ जाता है, हमारी ब्रेड्स आ जाती हैं, उन सबको कम करें. सो ट्राई एक्सरसाइज डेली, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज इज अ Very मस्ट, जिसको important. आप रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप अपने रूटीन में डालें. सो लॉट्स ऑफ वाटर, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, ट्राई टू टेक एम्पल स्लीप. ये जो लॉकडाउन की वजह से सारी रात ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इन चीजों पे हम लोग लगे और ये सीरियल्स देखे जा रहे हैं, तो try to take ample amount of sleep and keep yourself relaxed and stress free इस जमाने में भी. ये सारी चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह स्किन भी अच्छी हो जाएगी और दिमाग भी ठीक रहेगा. Wonderful. Okay, so viewers, with that, I would like to wrap up our session. Thank you to our audience for joining us today. And a special thanks to Dr. Anita Kazi for giving us some of her time and providing every one of us an opportunity to learn a great deal about acne scars and fine lines. So thank you so much, ma'am. You're welcome and thank you so much, Kehkashan, for having me here. Thank you. You're most welcome.
Thank you for watching. We hope that you found this discussion both valuable and highly informative. Join us again in the next session with yet another interesting topic. The details will soon be posted on our social media pages. So make sure that you follow our page for more live sessions on different dermatology and cosmetology related topics. You can also inbox us your queries and questions. See you all in the next session. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.